यस हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे तो आप सब जानते ही हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर है ये आपका। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। यस, मैंने पहले भी बताया आपको, जब हमने वन वे और टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टडी किया था तब हमने उसमें फीडबैक की इम्पोर्टेंस देखी थी। बट यहाँ पर स्पेशली कम्युनिकेशन में फीडबैक की इम्पोर्टेंस दी गई है और फीडबैक इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा नहीं है कि फीडबैक इम्पोर्टेंट नहीं है, फीडबैक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कहा गया है सेंडिंग बैक द नॉलेज अबाउट द मैसेज टू द कम्युनिकेटर इज नोन एज फीडबैक। यानी कि कोई भी मैसेज, कोई भी नॉलेज किसी मैसेज के लिए भेजी गई हो टू द कम्युनिकेटर को इज नोन एज फीडबैक। यस, after receiving the message, the receiver will take necessary action and send feedback information to the communicator. Communicator must know how well the message has been received by the receiver, understood, interpreted and acted upon. Feedback helps to determine this process. Feedback is one of the important elements of the communication process. A communication process without a provision for feedback is not an effective communication. Yes, feedback is the yardstick which measures the effectiveness of communication and is used for evaluation and review and to amend the message in the light of response. Efficient managers have reliable feedback and they succeed in their effective communication. Generally, greatest the feedback, the more effective communication process is likely to be. Feedback is clear from. Feedback varies from one situation to another. In face-to-face communication, there is immediate and continuous feedback. The facial expression of the listener can tell the speaker whether the message is understood. For instance, when the supervisor observes a frown on the face of a latecomer employee who has been reprimanded for coming late, the feedback shows that the worker has not liked the reprimand. The speaker can modify the message according to the needs and understanding of the listener and also make it more acceptable. In a nutshell, the audience can control the speaker through feedback on the spot. In written communication, feedback is slow. रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, फीडबैक स्लो होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया सेंडिंग बैक द नॉलेज अबाउट द मैसेज टू द कम्युनिकेटर इज नोन एज फीडबैक, और एक सिचुएशन भी बताई है ना। इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कोई एम्प्लॉय लेट आता है तो सामने वाला बंदा, जो उनके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं, वो जान जाते हैं कि आप उसको अभी कुछ कहोगे तो सही होगा या नहीं होगा, या नहीं कहोगे तो सही होगा या नहीं होगा, है ना। उसकी सिचुएशन जान जाते हैं तो एक फीडबैक मिल जाता है ना, या उसको टोक देते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ, ये हमने इसको ये पूछ लिया लेट कैसे हो गया तो इसने बता दिया, है ना। लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि राइटर नहीं देख पाता फेशियल एक्सप्रेशन किसके, रिसीवर के। Yes, there is no chance for immediate clarification or modification or even for finding out if the message has been understood. Feedback may also be collected through grapevine. Yes, grapevine communication के through भी feedback हम collect करते हैं। अभी हम इसके types में आगे पढ़ेंगे, communication के types में types of communication पढ़ेंगे, उसमें आएगा आपका grapevine communication. In case feedback is negative, the speaker can go in for self-improvement through self-introspection and he can go in for major changes in delivery and the manner of speeches. कई बार ऐसा होता है कि फीडबैक नेगेटिव भी हो जाता है ना। तो जो स्पीकर होता है वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपना इंस्पेक्शन कर लेते हैं एंड ही कैन गो इन फॉर मेजर चेंजेस इन डिलीवरी एंड मैनर ऑफ स्पीच, यानी कि वो अपने स्पीच में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जब हमें
देखिए मैं आपको कुछ बता रही हूँ, है ना, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो जब आप मुझे बताओगे कि मैम हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई, तभी मैं उस चीज को आपको क्लियर कर पाऊंगी, है ना। तो यही चीज यहाँ पे कि कोई पर्सन अगर आपको कोई चीज बता रहा है, उसको अगर जब तक आप एक फीडबैक नहीं दोगे, है ना, अच्छा फीडबैक मिलेगा पॉजिटिव तो वो इम्प्रूव करेगा, और अगर नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो वो अपने आप में चेंज करेगा, है ना। चलिए, देयर इज yes, feedback is an error correcting machine and therefore a good speaker is always attentive to the feedback. एक अच्छा स्पीकर जो होगा वो ही अपने आप में चेंज करने की कोशिश करेगा, है ना, वो इस चीज के लिए अटेंटिव भी रहेगा कि उसको अपने आप में क्या क्या चेंजेस करने हो। तो इसलिए फीडबैक को एक करेक्टिंग एरर करेक्टिंग मशीन कहा गया है कि ये एरर्स को करेक्ट करने वाली एक मशीन है। क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन कौन से डायरेक्शंस में किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, उसके बाद अपवर्ड कम्युनिकेशन, द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ये डायरेक्शंस हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट डायरेक्शन अब हम देखते हैं डाउनवर्ड। कम्युनिकेशन इन द फर्स्ट प्लेस फ्लोज डाउनवर्ड्स। जैसा कि इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ये डाउनवर्ड में चलता है। ऑल इंफॉर्मेशन इन दिस मीडियम इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस एंड ऑर्डर। क्योंकि ये डाउनवर्ड में है ना, टॉप लेवल टू लोअर लेवल जाता है, टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट में जाता है। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है, इसका जो मीडियम होता है, या आप ये कह लीजिए कि जो भी इसमें मैसेज दिया जाता है वो इंस्ट्रक्शन होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं या फिर ऑर्डर होते हैं, है ना। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ये नहीं कहेगा क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, अगर आप ये कर सकते हैं तो प्लीज ये कर लीजिए। नहीं, टॉप मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको ये काम ऐसे करना है, या आपको हमें इस चीज की लिस्ट प्रिपेयर करके देनी है ना, या आपको वो डायरेक्शन देगा कि ये काम है और ऐसे ऐसे होना है, आप इसको कर दीजिए। या आपको ऑर्डर देगा कि ये कोई भी नोटिस फॉरवर्ड कर दिया कि ये काम आज हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो डाउनवर्ड वर्ड आ रहा है ये अपने आप से बता रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एक डाउनवर्ड में चलता है, यानी कि टॉप लेवल टू लोअर लेवल चलता है। टॉप लेवल से जो भी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस हमें मिलती हैं वो हमें फॉलो करनी होती है, यानी कि अपर लेवल से लोअर लेवल। दिस डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन्स द ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्ट करता है किसको, दिस डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो डायरेक्शन होती है कम्युनिकेशन की, ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन ऑथराइज कर रहा है, किसके अंडर में है ना। तो डाउनवर्ड में हमें पता चलता है कि हमारा जो अपर मैनेजमेंट है या अपर लेवल है वो हमें डायरेक्ट करेगा, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन आती है ये एक जनरल बॉडी है ना, इसकी यहाँ से चेयरमैन के पास गई, चेयरमैन से मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, और मैनेजिंग डायरेक्टर से मैनेजर्स के पास। ऐसे ही ये फ्लो चार्ट चलता रहता है, और मैनेजर के पास से फिर ये जाता है किसके पास, जो भी हमारे कौन होते हैं, जो भी हमारे ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स होते हैं, है ना, उनके पास जाता है। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एक फ्लो चार्ट है। इसके बाद डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या क्या जरूरी होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज नीडेड। ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है, टू गेट थिंग्स डन, है ना, चीजों को पूरा कराने के लिए। टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज फॉर चेंज, एम्प्लॉइज को प्रिपेयर करता है चेंज के लिए। टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्करेज सस्पिशन, टू एंश्योर सेंस ऑफ फीलिंग एंड कमिटमेंट, to make subordinates aware of company's target, policies, procedures, plan, etc. Downward communication ensures proper functioning of controlling activities. Subordinates are aware of their weakness and are suggested method of overcoming such weakness. तो downward communication में ये जरूरी होता है, या ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जरूरी होता है, ये नीडेड है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए। आपको अपनी चीजों को पूरा कराना है, आपको अपने एम्प्लॉयज में कुछ चेंज कराना है, या अपने एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करना है उन चेंजेस के लिए, है ना। आपको इंश्योर होना है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको इंश्योर
सेंस ऑफ फीलिंग एंड कमिटमेंट के लिए, टू मेक सबॉर्डिनेट्स, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को बनाना है, अवेयर ऑफ कंपनीज टारगेट, अपने कंपनी के टारगेट्स के अवेयरनेस के लिए कि जब आपके एम्प्लॉयज अवेयर रहेंगे आपकी कंपनी के टारगेट्स के बारे में, आपकी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, प्लान के बारे में, यानी कि आपकी कंपनी की, आपकी एंटरप्राइज की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उन्हें जब जानकारी होगी तभी तो वो कुछ कर पाएंगे, है ना। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आपके यहाँ पे काम कैसे होता है, आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो ना तो जब उनको पता ही नहीं है तो वो किसी को बता भी नहीं पाएंगे, यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू।